Perfect. So let us start with this lecture now. I would like to formally introduce you to this Global Youth Content Fellowship. ठीक है. Team Asar se we have Harjot and me, and from Team City One Initiative we have Miss Kashish with us. Hi Kashish. She'll be observing the proceedings. Uh, परी आपका हैंड रेज है, आपको कुछ कहना है? परफेक्ट. तो इस पहले दिन के लेक्चर का पर्पस जो है इट्स वेरी क्लियर. इट्स टू टेक अ जर्नी from I have never designed anything on Canva or a poster or anything. From there, I want you to feel confident enough at the end of this lecture to then say that you I can confidently submit my poster. So that is the journey we'll be embarking on upon today. ठीक है. The whole purpose of this Global Youth Content Fellowship is to make you aware of these tools that you can use and deploy to create content. Now, content creation, earlier on, about 3, 4 years ago, it might have been a niche thing, it might have been a different thing, but it has permeated every walk of life nowadays. Whether you are in sales, marketing, whatever thing you are doing, regardless of the industry you are in, content creation has become a foundational bedrock, a skill which is required in every setting, you know and I was very glad to see the kind of responses we received. Many school kids, many college students, we have law students, we have engineering aspirants, so on and so forth. So this shows that you are also eager to learn this content creation, and that is our aim as well here. So the fellowship, acha, how many of you have joined the classroom, the Google Classroom, which was shared with you? All right. All right, I can see a few hands raised. How many of you have not joined it yet? Is there anyone who has not joined the Google Classroom yet? Everyone has joined? Perfect. So the Google Classroom is the place in which there is a classroom has been formed for you fellows, where you can upload your tasks. So the task and the deadlines have been assigned already. So that is something that is the most crucial part of this fellowship, right? Some of you are attending live sessions, some of you would be watching this in recorded form. So the most important thing, however, is the sincerity and diligence through which you submit your tasks. The tasks have been designed very progressively. These lectures would simply be to explain the task to you, to help you get the knowledge of those tools. And finally, the main fellowship starts when after this lecture, you sit down with your laptop, with your smartphone, and start applying those things, creating your own stuff, because content creation, regardless of the input you get, because input sources are varied. There are so many sources on YouTube freely available. Still, you chose to be present in this fellowship, right? Because we'll just give you a medium of, a pinpointed 15, 20 minutes lecture on the very thing that, will benefit you. But the actual journey will start once this lecture is over and once you sit down and start applying yourself to it. Okay. So this lecture will hold no water. It won't add any value unless you start doing the submission. Yesterday I was very happy to see most of you completed the task. A couple of you did not update it, but I could see the number of followers had increased. So I would request you to please be prompt. All right. Also, finally, one thing that I wanted to announce was that once this 10-day fellowship is over, we'll have a small graduation online like this Google Meet, in which we will be announcing certain awards, and those awards will be based on your performance criteria. Like some days you have, like today you have a poster submission, so we'll have some best poster awards, we'll have some best vlog awards, whatever submissions will follow in the following days. And also one of them is to see how promptly you are displaying your tasks. Like a task was assigned to you yesterday, so those who have done it well and good, and those who have not, please do them promptly from today onwards. With that preliminary setting uh, being done, let us now move to the actual body of today's discussion. All right. So today's task, the name is Meet the Fellow. ठीक है, मीट द फेलो हमारा आज का टास्क का नाम है, डे 1. अच्छा, आप सब कंफर्टेबल है ना, मैं हिंदी में भी बोलूँ अगर?
किसी को कोई समस्या परेशानी? नहीं, आप प्लीज, अगर वीडियो नहीं ऑन कर सकते, आप थोड़े रिएक्शंस आई गेस इसमें होते हैं गूगल मीट में, आप वो दे दीजिए, कुछ थम्स अप कुछ, है ना, ताकि मुझे पता लगता है कि आप सुन रहे हैं। परफेक्ट। शैल वी मूव ऑन? परफेक्ट। तो आज का हमारा जो टास्क है उसका नाम है मीट द फेलो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम दो चीजें करेंगे। सबसे पहले तो वील लर्न हाउ टू ऑपरेट कैनवा। ठीक है, कैनवा ही टूल रहेगा जो हम आज से 10 दिन की फेलोशिप में यूज कर रहे होंगे। ठीक है। द सिंपल रीजन इज कैनवा इज वेरी यूजर फ्रेंडली, उसका जो ग्राफिक इंटरफेस है वो यूज करना सीखना बड़ा आसान है, और इसकी ऑपरेटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने कुछ बनाया है, आप उस डिज़ाइन को, उस पोस्टर को एडिट करना चाहते हो, या चाहते हो कि हम रिव्यू करके एडिट करें, तो आप सिंपली उसका जो है लिंक शेयर कर सकते हो ना, और हम उसको जो है अपने एंड से भी एडिट कर पाएंगे। तो इसलिए हमने कैनवा चूज करा है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कैनवा डाउनलोडेड है जिनके डिवाइस में, या कभी कैनवा यूज करा है? ऑल राइट, वी हैव 1 2 3 4 हैंड्स रेज्ड। परफेक्ट। चलो, तो आपको कुछ आइडिया होगा कि कैनवा क्या होता है, और कितने लोग हैं जिन्होंने कभी कैनवा यूज नहीं करे, डाउनलोडेड भी नहीं है उनके पास? सो वी हैव, ठीक है, परफेक्ट। तो जो भी लोग अभी थोड़ा लेट जुड़े, नो नीड टू वरी, अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं करे, अभी हम बस डिस्कस कर रहे थे क्या होना है। ठीक है, आज का जो मेन पर्पस है इस मीटिंग का, या जितनी भी मीटिंग्स अब होंगी, उनका यही है टू मेक यू अवेयर ऑफ द टूल्स एंड द टास्क दैट यू हैव टू डू। सो इट्स लाइक 30% of the fellowship is attending lectures and understand. 70% of your learning starts from when you start applying those things to the tasks that have been assigned. Okay. So whenever this lecture is over, that is when your real fellowship begins. So you have to start doing the task promptly and submit them. We also have some awards for the kind of task you do and the punctuality of the submissions. Right? So please adhere to them. नाउ वील बिगिन विद द कैनवा थिंग। ठीक है, अब कैनवा अगर आप फोन में ऑपरेट कर रहे हैं, या आप लैपटॉप वगैरह में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसका जो डाउनलोड प्रोसीजर है इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इफ यू वांट, आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ हाउ टू डाउनलोड कैनवा फॉर यू, बट इफ यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम फोन तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और अगर आप उस पे हो, लैपटॉप पे हो, तो आप सिंपली ब्राउजर पे जाओ, यू राइट डाउन डाउनलोड कैनवा, और वहाँ से आपको जो है डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। विंडोज़ या मैक ओएस जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वंस यू हैव डाउनलोडेड, उसके बाद किस तरह का इंटरफेस रहेगा वो मैं आपको भी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। उस स्क्रीन शेयर में आज हम दो चीज़ें सीखेंगे मेनली। एक तो पोस्टर बनाना कैसे है, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ अ पोस्टर मेकिंग, and we'll take it to a certain advanced level, and I'll show you how to put in pictures by removing their backgrounds। ठीक है, अब कुछ लोगों का जो है, वी हैव कैनवा प्रो वर्जन भी लेते हैं कुछ लोग, राइट, बट वो फीचर्स हम कैसे बिना कैनवा प्रो लिए एक्सेस कर पाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, by the end of this lecture, once you know how to do it, I'll give you the assignment of this very thing। ठीक है, तो अगेन आज की असाइनमेंट का नाम है मीट द फेलो। इस असाइनमेंट का पर्पस ये है कि हम आज जो पोस्टर बनाएंगे वो सब लोग अपनी अपनी पर्सनलाइज एक पोस्टर बनाएंगे, जिसमें आप अपनी खुद की फोटो लेंगे, और अपनी खुद की हॉबीज एटसेट्रा जो है लिस्ट करते हुए एक फन टू सी पोस्टर बनाएंगे, जो कि एक इंस्टाग्राम पे आप डाल पाए। कुछ इस तरह की डायमेंशन रहेंगी उसकी, और इवेंचुअली आपकी जो भी सबमिशन रहेंगी उसको फिर हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, हमारी एक पोस्ट लाइंड अप है अभी, विच आर द मीट द फेलो पोस्ट। उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी 10-15 फेलोज हमारे साथ हैं, सबकी एक एक पोस्ट जाएगी, जिसमें वील जस्ट इंट्रोड्यूस यू दैट दीज आर द सिलेक्टेड फेलोज फॉर आवर प्रोग्राम। ठीक है, तो उनकी वो जो पोस्ट आपकी जा रही है, सपोज गुरमुख की एक पोस्ट जा रही है, तो उसमें गुरमुख की फोटो होगी, उसमें लिखा होगा कि ये इस प्रोग्राम में इस टेन्योर में जुड़े हैं हमारे साथ। उसकी एक स्लाइड जो है वो आपको बनानी है, जो कि स्क्रॉल करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम तो सब चलाते होंगे ना, या आइडिया होगा आपको इंस्टाग्राम क्या है, तो उस पर हम जो है पोस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, so that is the main objective and aim of today's task। So now that you have that picture in mind, so are you ready to begin with the canva?
स्टार्ट करें? Yes. परफेक्ट, परफेक्ट, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। परफेक्ट, आप प्लीज बता दीजिए स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं इस पर, जो कि है हमारा कैनवा। कुछ इस तरह से ओपन होता है कैनवा। ठीक है, ये होम पेज आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले तो आप अपना जो गूगल साइन इन है वो ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर अकाउंट आता है, तो यहाँ पर अपना आप जो भी आपका जीमेल अकाउंट है उसको साइन इन कर लीजिएगा। वंस यू आर डन विद दिस, तो कुछ इस तरह का कैनवा का इंटरफेस आएगा। अब कैनवा में आप प्रेजेंटेशंस जो होती हैं, पीपीटीज, सोशल मीडिया की चीज़ें, वीडियोस, प्रिंटिंग का सामान, डॉक्यूमेंट्स, शीट, सब कुछ बना सकते हैं। ठीक है, अगले कुछ दिनों में हम बाकी चीज़ें भी देख रहे होंगे, लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं विद द पोस्टर्स से। ठीक है, अब पोस्टर बनाना कैसे है, तो इट्स वेरी सिंपल। और सबसे पहले तो हम जाएंगे यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन में। ठीक है, क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ हमारे पास काफ़ी कुछ आ गया, राइट? तो इसमें हम ढूंढेंगे इंस्टाग्राम, जो आएगा यहाँ सोशल मीडिया में। ठीक है, सोशल मीडिया में आए। ये इंटरफेस जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कैनवा डेस्कटॉप है, लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप खोलेंगे, फ़ोन का सिमिलर ही वर्जन होगा, बस वो डिफरेंट लेआउट में होगा। ठीक है, तो उसका आप देख लीजिएगा। कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क ऑन द ग्रुप। तो इसमें इंस्टाग्राम पे आए, इसमें इंस्टाग्राम पोस्ट, क्योंकि हमारा पहला टास्क है इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए जो है अपनी वो बनाना है एडिट। तो हम इस पर आएंगे और कुछ इस तरह से उस डायमेंशन का एक जो है क्लीन स्लेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो स्लेट है ये हमारा पोस्ट है। इतनी डायमेंशन की हमारी जो है इमेज बनेगी। ठीक है, अब इस पोस्टर को, किसी भी पोस्टर को शुरू करने से पहले दो चीज़ें होती हैं। एक तो उस पोस्टर का जो टेम्पलेट है, व्हाट काइंड ऑफ अ वाइब दैट पोस्टर कैरी। हो सकता है वो एक फॉर्मल पोस्टर हो आपके, सपोज स्कूल के किसी इवेंट का या कॉलेज के किसी सेशन का। ठीक है, या वो थोड़ा इनफॉर्मल पोस्टर हो सकता है, जैसे कि हम बना रहे हैं कि एक फोटोग्राफ होगी जिसमें हम खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? या किसी आप अपने फ्रेंड के लिए बर्थडे विश का एक पोस्ट बना रहे हैं। तो इट कैन बी एनी। तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच यू कैन डू दैट। एल्स व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन चूज फ्रॉम प्री मेड टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन होता है टेम्पलेट्स का, ये आप देख पा रहे हैं। इसमें ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स बने होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अलग अलग टेम्पलेट्स है। अब तो कैनवा में कैनवा एआई भी एनग्रेन्ड हो गया, तो यू कैन जनरेट योर स्पेसिफिक टेम्पलेट्स एज वेल। जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ कि अनाउंसमेंट पोस्टर, ठीक है, और मैं सर्च करता हूँ, तो देखो यहाँ पे अनाउंसमेंट के लिए कई टेम्पलेट्स आ गए। तो कुछ इस तरह से, जैसे इसमें फोटोग्राफ वाले भी हैं। अब मैं इस पे किसी पे क्लिक करूँगा, जैसे इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये टेम्पलेट यहाँ पर खुल जाएगा, और इसको फिर मैं चाहूँ तो एक एक एलिमेंट को फिर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैनवा इस मामले में काफ़ी अच्छे। अब ये जैसे फ्री टेम्पलेट है तो आई कैन यूज़ दिस। कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो फिर सिर्फ कैनवा, जो कैनवा प्रो होता है सिर्फ उसमें यूज़ कर पाते हैं। सो नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ what Canva is and how to open a design, अब हम आते हैं अपने टास्क के ऊपर। ठीक है, कि हमें किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए लेट मी शो यू अ प्रीवियस डिज़ाइन वी हैव मेड, जो कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारी GYCF के पोस्ट से, राइट, ग्लोबल यूथ कंटेंट फेलोशिप। अब कुछ इस तरह की वाइब हम कैरी करेंगे, इस तरह का लेआउट हमें चाहिए ऑल इन ऑल, ताकि हम जो है, क्योंकि हम पुरानी पोस्ट जो GYCF की है उसी तरह से डालें, तो कुछ उसी के सिमिलर टेम्पलेट में हम अगली पोस्ट डाल देंगे। तो अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को हम कैसे जो है दोबारा बना सकते हैं, उसके लिए दोबारा होम पेज पे आते हैं। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है इसका नाम देखेंगे हम कहाँ पर है, यहाँ पर आ रहे हैं इसका नाम, राइट। हम इस पे थ्री डॉट्स पे जाएंगे, थ्री डॉट्स पे जाके यहाँ पर एक ऑप्शन होगा मेक अ कॉपी। ठीक है, मेक अ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यही डिज़ाइन की एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, तो इस कॉपी को मैं खोलूँगा और अब यहाँ पे आई कैन एडिट। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कहीं नोट डाउन कर रहे हो तो स्टेप नंबर 1 लिख लो कि ओपन कैनवा, ओपन अ डिज़ाइन। स्टेप 2 में लिख लो, सिंस आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ दिस
of this template with you guys. अच्छा, लिंक कैसे भेजते हैं ये भी देख लो आप। तो शेयर के ऑप्शन में जाएंगे, तो शेयर में ना वी हैव दिस एक्सेस लेवल। यूजुअली ये पहले ऐसे होगा, ठीक है, मतलब इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, ओनली यू कैन एक्सेस एंड एनीवन विद द लिंक कैन एक्सेस। तो यूजुअली ये लॉक्ड होता है, तो आपको सबसे पहले इसको एनीवन विद द लिंक कैन एक्सेस करना, और यहाँ पे तीन ऑप्शन होते हैं, इसमें एडिट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर इसका लिंक कॉपी करके आपको जहाँ भी भेजना है, अगर व्हाट्सएप करना है किसी को या और कहीं भेजना है, तो आप वो लिंक शेयर कर सकते हो। सपोज आपके पास लिंक आता है तो उसे कैसे खोलना है। सपोज आपको मैं लिंक भेजता हूँ, ठीक है, ये डिज़ाइन का मैंने लिंक आपको इस पे भेज दिया। व्हाट्सएप आपके पास लिंक आ गया, राइट। अब इस लिंक को आप सीधा चाहे तो फ़ोन में खोल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अपने ब्राउज़र में आएंगे। ये दिख रहा है ना आपको जो सब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार थम्स अप भेज दो इफ एवरीवन इज एबल टू सी दिस। पहले तो ये सीधा लिंक जो है हम खोल सकते थे कैनवा पर, अब कुछ सिस्टम हो गए, तो पहले हमें लिंक कॉपी करके वी हैव टू कम टू द ब्राउज़र। ब्राउज़र में एक नए टैब में वील जस्ट पेस्ट दैट लिंक, ठीक है, एंड वील वेट फॉर दैट लिंक टू ओपन इन द ब्राउज़र, ठीक है। अभी ये छोटा लिंक है, अभी ब्राउज़र में जब ये ओपन होगा तो ये अपने आप एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। जस्ट गिव गिव इट 5 मिनट, जस्ट गिव इट अ मिनट। ये थोड़ा सा मेरा नेटवर्क काफ़ी कुछ खुला हुआ है एकदम से लैपटॉप। वंस दिस लिंक एक्सपैंड्स, तो हम वो एक्सपैंडेड लिंक कॉपी करना है। ये उन सब के लिए जो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। जो इसको ऑलरेडी फ़ोन पे कर रहे हैं उनका उसी से खुल जाएगा, ठीक है। Just a sec. ठीक है, मैंने आपको जो लिंक शेयर की है वो किसका है, वो उस टेम्पलेट का है जो GYCF का टेम्पलेट चल रहा है। इनफैक्ट उसमें आप देखोगे आगे, तो हमने कल ही अर्जुत और मैंने वी हैव क्रिएटेड अ पोस्टर फॉर यू फॉर एन अपकमिंग सेशन, जो 26 जून को हमने आपका एक और सेशन प्लान करे एक रिसोर्स पर्सन के साथ। तो ये आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से आपका डिज़ाइन ओपन हो गया। अब ये जो बड़ा वाला लिंक है ना, इस लिंक को कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी कर लिया। नाउ विल कम टू कैनवा। अब यहाँ पर ऊपर एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दिख रहा है ये वाला। इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओपन अ डिज़ाइन लिंक। ओपन अ डिज़ाइन लिंक के बाद वील जस्ट पेस्ट द लिंक दैट वी कॉपीड फ्रॉम आवर ब्राउजर और ओपन डिज़ाइन, ठीक है। और उसके बाद जो है वो लिंक हमारे कैनवा में खुल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने दो चीज़ें सीख ली हैं, कैनवा में नया डिज़ाइन कैसे बनाते, और कोई एग्जिस्टिंग लिंक को अपने डिवाइस में कैसे खोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? एक सेकेंड, आई कांट सी योर रिएक्शंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Perfect, perfect. Now we have done the preliminary thing. Now we know how to at least open a template on Canva. अब हम देखते हैं जो बेसिक चीज़ है, जो मेन चीज़ है हमारे पास, ठीक है। जैसे ये मैंने कॉपी बनाई थी डिज़ाइन की। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी किसी का आप लिंक लेते हैं, किसी से भी आप अगर डिज़ाइन लेते हैं, तो नेवर एडिट ऑन द सेम लिंक, ठीक है। उससे होता क्या है, उनके पास जो भी प्रोग्रेस होता है वो लॉस्ट हो जाता है। आप चेंज कर देंगे तो वो एक थोड़ा केओस हो जाएगा। तो हमेशा वॉट एवर यू नीड टू डू, वॉट यू नीड टू डू इज वट एवर लिंक दैट यू रिसीव, ठीक है। जैसे मेरे को अभी ये लिंक मैंने खोला, तो मैं अपने होम पे दोबारा जाऊँगा और यहाँ पे वो लिंक खुला होगा, ठीक है। तो वहाँ से मैं उसकी कॉपी बना लूँगा, ठीक है। अब उस कॉपी का मतलब क्या है कि अब वो मेरे डिवाइस में एक कॉपी बन गई, उसको मैं एडिट कर लूँगा, ताकि जो मेन लिंक है जिससे भी मैंने वो लिंक ली वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अब ग्रुप में एक लिंक भेज दिया है इसका डिज़ाइन का, तो आप सब लोग उस लिंक को खोलिएगा। वो प्रोसेस आपने समझ लिया कैसे खोलना है। इसका कॉपी बनाना अपने अपने डिवाइस में, वो इस नाम से बन जाएगा, और उसके बाद उस पर एडिटिंग शुरू करना, ठीक है। आर वी ऑन द सेम पेज? इज एवरीथिंग क्लियर अभी तक? Yes, sir. परफेक्ट, परफेक्ट। चलो, नाउ दैट वी Yeah. हैव अंडरस्टूड द प्रीलिमिनरी थिंग्स, अब देखते हैं आज के टास्क की डिटेल्स क्या है, ठीक है। आज हमारा जो टास्क है, आप में से कितने लोगों ने गूगल क्लासरूम में पढ़ा हमारे आज के टास्क का नाम?
ठीक है, आई सी कपल ऑफ हैंड्स रेज्ड। यस, तमन्ना आप बता सकते हो आज का टास्क क्या है? बेसिकली एक पोस्टर ही क्रिएट करना है ना, जिसमें हमें अपनी बेसिकली इंफॉर्मेशन देनी है कि नेम, क्लासरूम और एक पिक्चर लगानी है, राइट? यस, ठीक है, चलो, दैट्स द करेक्ट आंसर। मैं आपको दिखाते ही चलता हूँ कि गूगल क्लासरूम कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, जो लोग अभी मीटिंग में हैं वो भी, और जो शायद रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनके लिए भी। तो गूगल क्लासरूम आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे जिस प्रोग्रेशन के साथ हम चलेंगे उसी प्रोग्रेशन में आपको ये लिखे हुए देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो कैनवा पोस्टर है, ये डे वन का टास्क जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सबमिशन आज रात को 12 बजे की ड्यू है। आप इसको क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा इसमें कि आज के टास्क का नाम है मीट द फेलो। आज के टास्क का नाम है मीट द फेलो, कैनवा पोस्टर, और इसकी थीम है हॉबीज एंड आइडेंटिटी। राइट, ऑब्जेक्टिव जैसे कि मैंने आपको बताया, विजुअली अपीलिंग सेल्फ इंट्रोडक्शन पोस्टर हमें बनाने हैं, जो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अ, आपकी सबमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? ठीक है, ये सब आपके क्लासरूम में होगा, आप वहाँ से देख लेना कि आपको अपना नाम, अगर आप क्लास, कॉलेज, एज वो डालना चाहो वो भी डाल सकते हो, कौन सी सिटी से हो ये ज़रूर डालिएगा। ठीक है, और स्पेशली मंडी डबवाली से जो है वो स्टेट भी साथ में डाल देना है ना, अपना मतलब सिटी और स्टेट डाल देना। फिर हॉबीज़, इंटरेस्ट, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा लिखना है। फिर उसके बाद एक पर्सनल कोट या कोई भी मोटो आपको अगर डालना है उसमें। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ इस पोस्टर की आज के टास्क के लिए जो है, वो है कि बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद अपनी खुद की एक प्रोफाइल फ़ोटो डालनी। ठीक है, और फाइनली आइकन्स और ग्राफिक्स जो आपको लगता है आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमें पोस्टर में डालना है। आज के लर्निंग आउटकम्स ये हैं। ठीक है, आप इनको भी पढ़ सकते हो। सबमिशन पीएनजी या पीडीएफ फॉर्म में रहेगी, वो हम देख लेंगे कैसे डाउनलोड होगी। और उसको जो है अपलोड करना है। अपलोड करना कैसे? अब जो भी टास्क होंगे, जैसे कि ये डे वन का जो टास्क है, इसको जब आप खोलोगे ना अपने एंड एंड पे, क्योंकि मैं तो देखो आई हैव क्रिएटेड द टास्क फ्रॉम दिस अकाउंट, दिस इज द टीचर अकाउंट, तो यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा है, बट आपके यहाँ पे एक ऑप्शन होगा हैंड इन करके। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, बट यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हैंड इन। तो टर्न इन या हैंड इन करके आप उसे क्लिक करोगे तो उसमें अपलोड का ऑप्शन आएगा, और वहाँ पे यू कैन जस्ट सिंपली सिलेक्ट द अपलोड ऑप्शन, एंड वट एवर design or poster you have prepared, you can simply upload it over there. ठीक है, once you have uploaded it, I will receive it over here. ठीक है, मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप सबके जो है नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपका वो हो जाएगा, और आपके पर डे के टास्क के हिसाब से मैं जो है यहाँ पे आपको मार्क्स दे दूंगा। ठीक है, तो उसको हम रिव्यू करेंगे। अभी कुछ लोग हैं जो मीटिंग में नहीं है असर टीम की तरफ से, जो स्पेशल रिव्यू करने के लिए आपके टास्क की सबमिशन का वेट कर रहे हैं। सो वंस यू सबमिट दोज टास्क, दोज मेंटोर्स विल रिव्यू इट एंड पर्सनली आपको फीडबैक भी देंगे। एंड फाइनली जो है हम कल के लेक्चर और कल के टास्क की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारी फेलोशिप प्रोसीड करेगी। ठीक है, ये इतना क्लियर है सबको कैसे क्लासरूम ऑपरेट हो रहे, कैसे यूज़ करना? तो अगर क्लियर है तो प्लीज़ थम्स अप भेज दो। परफेक्ट, परफेक्ट। चलो, कमिंग बैक टू द पोस्टर नाउ। अब ये जो टेम्पलेट हमें मिल गया है, हमें इस टेम्पलेट से इंस्पिरेशन लेके इसके कुछ कुछ एलिमेंट्स को हमें रखने, कौन से रखने में बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है वो रख सकते हैं। ठीक है, और ये जो लोगोज है इनको रख लेना। ठीक है, लोगोज और नाम जो है, बाकी जितना पोस्टर दैट इज योर एरिया ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट एज मच एज यू कैन, ट्राई टू बिल्ड अ पोस्टर आउट ऑफ इट। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, अब एक पोस्टर में जैसे कि हम देख पा रहे हैं टेक्स्ट होता है, फिर कुछ कुछ ग्राफिक्स होते हैं, जैसे ये कैमरा का ग्राफिक है, जैसे ये माइक का ग्राफिक है। राइट, अब इनको कैसे प्लेस करना है, कैसे लाना है वो देखते हैं। ठीक है, ये भी कुछ कुछ जैसे पेपर का ग्राफिक है। ठीक है, लेट्स लेट्स वन बाय वन जस्ट ब्रेक डाउन दिस पोस्टर। ठीक है, ये सिंपली क्या है, ये भी एक नॉर्मल पोस्टर ही है। राइट, जो हमने डिज़ाइन खोला था, एसेंशियली ये वही डिज़ाइन तो है।
ठीक है, जो हमने अभी देखा था, एक नया जीरो से जब हमने डिज़ाइन बनाया था, वही डिज़ाइन बन गए। फिर यहाँ नॉर्मल पोस्टर से हम एक अच्छा पोस्टर कैसे बनाएंगे, लेट्स सी द प्रोसेस। तो सबसे पहले, सिंस दिस पोस्टर इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर आर इंट्रोडक्शन पोस्ट फॉर द ग्लोबल यूथ कंटेंट फेलोशिप प्रोग्राम। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि व्यूअर को दो चार चीज़ें हम दिखा दें। ठीक है, अभी मैं एक अपना पोस्टर बनाता हूँ ताकि आप सब लोग देख लो इस प्रोसेस में। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ऑलरेडी कैनवा के बारे में कुछ कुछ पता हो, राइट, कुछ लोग हो सकते हैं जिनके लिए सब कुछ ही नया हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अब से जो भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पैरेलली थोड़ा थोड़ा खुल कर ट्राई कर लो। ठीक है, नहीं तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ एटलीस्ट नोट कर लो, हेडिंग्स कॉपी पेन, कि कौन से एक फ्लो में आप चल सकते हो टू फाइनली क्रिएट द पोस्टर। ठीक है, तो आई गेस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर नाउ। सबसे पहले आपने डिज़ाइन खोल लिया। ठीक है, अब चाहे तो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, न्यू डिज़ाइन खोल के, जैसे हमने करा था। चाहे तो आप जो है टेम्पलेट को लेकर फिर उसमें एडिट शुरू कर सकते हो। ठीक है, हम जीरो से करते हैं। सबसे पहले तो देखो, हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, हमने सोचा कि हम डार्क बैकग्राउंड पे लाइट कलर का वो करेंगे, कॉन्ट्रास्ट बनाएंगे। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हो, जैसे एक हम उल्टा भी बना लेते हैं, जिसमें हम एक लाइट कलर का बैकग्राउंड लेंगे, जैसे ये हमने ले लिया हल्का सा। ठीक है, लाइट रेड, और लाइट पे हम डार्क का बनाएंगे। ठीक है, तो दो हमारे पास आ गए। अब हमें कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करनी है। पहले तो हमें दिखाना है कि ये है किसके लिए। ठीक है, तो हम एक टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अच्छा, लेफ्ट में ये सारे टूल्स हमें दिए होते हैं कैनवा में। ठीक है, इसमें पहला है टेम्पलेट्स, जो मैंने आपको यूज़ करके दिखाया ही था कि हमें पूरा का पूरा टेम्पलेट चाहिए। दूसरा है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन पर हम अभी आएंगे। फिर होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, उसमें प्री मेड डिज़ाइन होते हैं, अगर हमें हेडिंग सब हेडिंग बांटनी है तो। नहीं तो हम सिंपली ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, उसमें हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब मैं सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट बॉक्स को, तो ऊपर आप देख रहे हो कुछ कुछ नई चीज़ें खुल गई, राइट। ऑल राइट, कुंवर, आप अभी आए हो मीटिंग में या किसी और अकाउंट से आए हो? नो सर, वो बीच में नेटवर्क इशू हो गया था तो बंद हो गई थी। अच्छा अच्छा, कहाँ तक सुना था लास्ट? लास्ट सर पोस्टर ही बना रहे थे सिंपल। चलो ठीक है, तब तो कुछ मिस नहीं हुआ। तो हम आए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पे, राइट। टेक्स्ट बॉक्स जब सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, फॉन्ट, फॉन्ट साइज और बाकी एडिटिंग टूल्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फॉन्ट। अब पोस्टर को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे पर्सनलाइज्ड बनाएं। ठीक है, जितना हो सकता है उसमें आप क्रिएटिविटी दिखाएं। अब आपका, क्योंकि ये सेल्फ पोर्ट्रेट हम बना रहे हैं, एक तरह से सेल्फ इंट्रोडक्शन पोस्टर बनाए, तो इसकी हर एलिमेंट का कोशिश करना इट रिफ्लेक्ट्स समथिंग फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। ठीक है, जैसे कि इफ यू वांट टू हैव व्हाटएवर फॉन्ट यू लाइक एंड यू वांट टू इट टू रिफ्लेक्ट योरसेल्फ, तो उस फॉन्ट को चूज कीजिएगा। जैसे कि आई विल गो विद एक फॉन्ट होता है जो मुझे काफ़ी पसंद है, जो होता है कैन, या ओपन सेंस भी बोलते हैं उसे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अच्छा, सैंस और सेरिफ, ये दो टर्म्स आपने फॉन्ट में काफ़ी अक्सर सुनी होंगी। ठीक है, इनका मतलब पता है क्या होता है? जैसे कि हम देखते हैं, जैसे सैंस सेरिफ हमने सर्च किया तो ये सारे फॉन्ट आए। ठीक है, सैंस सेरिफ आर टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स। ठीक है, कौन से टाइप ऑफ फॉन्ट आते हैं? सैंस का मतलब होता है, ठीक है, दीज आर लैटिन टर्म्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सैंस का मतलब होता है विदाउट। ठीक है, SANS का मतलब होता है विदाउट, और सेरिफ का मतलब होता है बाउंड। ठीक है, बंधा हुआ। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये फॉन्ट है, ठीक है, इसी को अगर हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे ऊपर डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे हम कोई सेरिफ फॉन्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेरिफ का मतलब होता है बाउंड। जो भी लेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बाउंड होंगे। अब आप डिफरेंस देख पा रहे हो दोनों में? यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि वो बाउंड लेटर्स हैं, उनकी जो साइड्स हैं जहाँ भी वो खत्म हो रहे हैं वो कुछ बाउंडेशंस के अंदर है। ठीक है, तो ये यूजुअली थोड़े फॉर्मल फॉन्ट्स के लिए यूज होता है सेरिफ। और सैंस सेरिफ होता है
वो फॉन्ट्स होते हैं जो बाउंड नहीं होते, जो ओपन होते हैं। जैसे ए खत्म हो रहा है तो वो खत्म होता आ रहा है, यहाँ पे ए के बाद भी ऐसा वो खत्म होके उसे बाउंडेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको सैन्स और सैंस सेरिफ का डिफरेंस समझ आ गया हो। ये फैमिली ऑफ फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी आपकी वाइब है, अगर आपको लगता है आपको थोड़ा और ज़्यादा फॉर्मलाइज, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना इंट्रो रखना है, तो आप फिर सेरिफ के साथ जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा फन वे में, थोड़ा नॉन सीरियस पोस्टर चाहिए, तो फिर आप सैंस सेरिफ में जा सकते हैं। अच्छा, कैनवा की अच्छी बात क्या है कि इसमें ऑलरेडी जो है फैमिलीज में फॉन्ट बटे होते हैं। ठीक है, फॉन्ट में जब आप आओगे तो ऊपर ऊपर ना यहाँ पे कुछ फैमिलीज ऑफ फॉन्ट्स होती हैं। ठीक है, हैंड राइटिंग, कॉर्पोरेट, डिस्प्ले, फिर सैंस सेरिफ, राउंडेड, बोल्ड, मॉडर्न वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो डिस्प्ले में जाके कुछ लेते हैं इस बार। कि आप चाहो तो इसके ऊपर जो है क्लिक कर करके अलग अलग फॉन्ट डिस्प्ले में देख भी सकते हो कि वो कैसे लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट करा है, हम इसे बदलते हुए देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलो लेट अस सपोज वी सिलेक्ट दिस वाला फॉन्ट। ओके, ये तो नहीं अच्छा लग रहा है, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमने फॉन्ट ले लिया। अब ये हो गया हमारा टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। अच्छा, ये चीज़ जो है, जो अभी मैं करने वाला हूँ ना नेक्स्ट स्टेप, ये कंप्यूटर लैपटॉप पे हो जाता है, लेकिन इसको स्मार्टफोन में करना है तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। वो है ड्रैग करने का। ठीक है, अब इसको मैं लेफ्ट क्लिक दबा के रखूंगा, पकड़ के रखूंगा, तो मैं इसे ड्रैग कर पा रहा हूँ, राइट। अब क्योंकि लैपटॉप में मैं हूँ, इस इंटरफेस में स्क्रीन बड़ी है, तो मैं इसको ड्रैग करके अगले डिज़ाइन तक भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये अगले उस पर आ गया, पेज पे। लेकिन अगर ये स्मार्टफोन में होता तो उसमें मुझे इसको राइट क्लिक करके, या स्मार्टफोन में जिस भी तरह से ये खुलता है, यहाँ पे कॉपी करके या कॉपी स्टाइल करके, ठीक है, फिर मुझे दूसरा पेज खोलना पड़ता और यहाँ पे फिर दोबारा जो है पेस्ट करना पड़ता। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इस तरह से प्रोसेस है। सिंस यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे आई थिंक कि ये बहुत अच्छा जो है उसमें दिख नहीं रहा है। तो व्हाट डू, आई सिलेक्ट दिस। और ये अच्छा फ़ॉन्ट साइज तो आपको पता ही है, इसको बड़ा घटा सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से खींच के भी बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट कलर, दिस इज गोइंग टू बी योर फ्रेंड फॉर दिस टुडेज टास्क। ठीक है, यहाँ पे आप कलर व्हील से जो है कुछ भी जैसे भी आपको लग रहा है आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन आता है ग्रेडियंट का। इस ग्रेडियंट को आप चूज करो तो इसमें कई प्री मेड टेम्पलेट्स आ जाएंगे। जैसे ये है कि नीचे डार्क और ऊपर लाइट, और इनके भी कलर्स में सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये पहला कलर है, ये दूसरा कलर। अगर मुझे चाहिए कि 3 कलर का ग्रेडियंट बने, तो सिंपली यहाँ प्लस पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, तो अब ये 3 कलर का ग्रेडियंट बन जाएगा मेरे टेक्स्ट के अंदर भी। ठीक है, तो लेट्स चूज दिस। पहला कलर रख देते हैं कि लाइट हो। दूसरा सपोज मैं, क्योंकि रेड है तो रेड से कॉन्ट्रास्ट लेट्स पुट थोड़ा इस शेड का। और तीसरा फिर आई पुट थोड़ा सा और डार्क इस शेड का। ठीक है, तो आपने देख लिया थोड़ा डार्क प्रोग्रेशन बन गया और ये ऊपर से नीचे आ गया। अब ये एक्चुअलिटी में कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हो ग्रेडियंट बन गए। ठीक है, तो आप चाहो तो ये कर सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अगेन ऑन व्हाट यू वांट टू डू विद द पोस्टर। ठीक है, मैं एक सिंपलर कलर के साथ जाऊंगा। फिर फाइनली आप चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, राइट, अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे भी आपका मतलब स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। एस का मतलब होता है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, आप चाहो तो इसको अपर केस, लोअर केस में भी शिफ्ट कर सकते हो। मुझे लग रहा है ये ज़्यादा बेटर लगेगा फॉर आर पोस्टर। ठीक है, अपर केस का मतलब होता है सब कैपिटल, और लोअर केस का मतलब इसको हम बोलते हैं कि स्टार्ट केस बोलते हैं, कि हर लेटर का पहला वर्ड जो है, सॉरी, हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल है और बाकी छोटा हो। इसको बोलते हैं स्टार्ट केस, की स्टार्टिंग जो लेटर है वो बड़ा हो। तो आप देख पा रहे हो किस तरह से हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ अभी हमने इसका फॉन्ट चेंज करा है और उसके फॉन्ट पे कुछ इफेक्ट्स चेंज करे हैं, और कितना एलिगेंट लग रहा है, राइट। इसी को फिर हम जो है कॉपी करके ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर वाले को। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ। ये अब आप देख पा रहे हो। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो अभी आप क्या देख पा रहे हो, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स एक एलिमेंट बन गया है, और ये टेक्स्ट बॉक्स भी एक एलिमेंट है। ठीक है, जब मैं इसको इसके ऊपर ला रहा हूँ तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेयर्स। अब इसको चेक करने के लिए कि ऊपर क्या है, मैं सिलेक्ट करूंगा,
और यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन होता है पोजीशन का। पोजीशन पे आके आई कैन सी यहाँ पे जैसे ये है ना अरेंज बैकवर्ड्स बैक, तो इस पे जब मैं बैक करूँगा तो अब ब्लैक वाला ऊपर आ गया, राइट। तो अब मैं ब्लैक वाला सिलेक्ट करके उसे पीछे ले जाऊंगा तो ये ऊपर नीचे। ये लेयर्स का कंसेप्ट हम आज नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में और डेप्थ में करेंगे, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है। चलो, नाउ दैट वी आर डन विद द टेक्स्ट पोर्शन, अब हम इसमें करते हैं अगली चीज़। ठीक है, टेक्स्ट हमारा हो गया। टेक्स्ट में हाँ एक और चीज़ आप देख सकते हो, इसमें अलाइनमेंट होती है कि आपको आपके टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से, अगर बड़ा बॉक्स है आपका और या टेक्स्ट बहुत सारा है, तो उसको आपको किस तरह अलाइन करना है, आपको उसे लेफ्ट से शुरू करवाना है, राइट से शुरू करवाना है, बीच में रखना है, तो उसके 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, इससे भी आप देख सकते हो। फिर वही लिस्ट बनानी है अगर बुलेट पॉइंट्स की, तो यहाँ से बना सकते हो। एडवांस सेटिंग्स में आपकी स्पेसिंग डिसाइड होती है, अगर आप चाहते हो, जैसे इसमें अभी हम क्या देख रहे हैं कि आदित्य वधवा, तो AADITY ये पास पास में है काफ़ी। अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा और खुला खुला हो, तो आप सिंपली टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करोगे, एडवांस सेटिंग्स में जाओगे, और यहाँ जो लेटर स्पेसिंग है पहला ऑप्शन, इसको आप पकड़ के बढ़ा दो, तो अब ये थोड़ा कैप आ गया है, राइट। तो इससे आपके पोस्टर की थोड़ी विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। अब ये और ज़्यादा स्लीक और बेटर लग रहा है इनिशियल जो हमने लिखा था उससे, राइट। फाइनली इसके साथ एक ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी में आप चाहो तो ट्रांसपेरेंसी को घटा या बढ़ा सकते हो, जिससे वो जो ओपेसिटी है कि कितना वो दिख रहा है आपके बाकी बैकग्राउंड के सामने जो भी आपका एलिमेंट है वो कितना दिख रहा है, तो इसको 100 पे रखोगे तो वो पूरा दिखेगा, और इसको कम करते रहोगे वो थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में घुलता रहेगा और 0 पे गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपको किस तरह से अपने टेक्स्ट को दिखाना है। इफेक्ट्स में जाके आप टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट्स लगा सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई विल एक्सपेक्ट कि आप जो भी सबमिशन आज कर रहे हैं उसमें इस सब का थोड़ा थोड़ा यूज करें। ठीक है, ताकि आप इस सब टूल से थोड़ा थोड़ा अवेयर हो जाए, और हर एक सेटिंग में एक अलग टूल की आपको ज़रूरत पता लगे। ठीक है, पर्सनली आई स्टार्टेड यूजिंग कैनवा व्हेन आई वाज इन ग्रेड 12, एंड कॉलेज में जब मैं गया अपने बैचलर्स जब मैंने करी, तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ द एडिटिंग टीम ऑफ वेरियस सोसाइटीज़। मैं डिबेटिंग सोसाइटी की एडिटिंग टीम में था, मैं डांस सोसाइटी की एडिटिंग टीम में था हमारे। तो उसके जितने पोस्टर्स जाते थे वी हैड टू सिट एंड मेक इट वेरी विजुअली अपीलिंग। और जब मेरी बैचलर्स खत्म हुई 3 साल बाद, अब जब मैं अपनी सेकेंड डिग्री कर रहा हूँ लॉ की, तो इसमें भी मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सोसाइटी का पार्ट हूँ। तो यहाँ पे भी डिजिटल वर्क में कैनवा के काफ़ी सारे पोस्टर्स बनाने होते हैं। ढेर सारे पोस्टर्स बनाने के बाद वन थिंग आई हैव लर्नड इज, हर पोस्टर जब आप नया बनाओगे तो उसकी कोई डिफरेंट डिमांड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि ऑब्जेक्टिव एम क्या है आपके पोस्टर बनाने का। वंस यू रिकॉग्नाइज इट, उसके उसके अलाइनमेंट में उसी डायरेक्शन में यू हैव टू यूज द एलिमेंट्स। ठीक है, तो इफेक्ट्स का जो ऑप्शन है, अगेन दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर टुडेज टास्क। ठीक है, आप इसको कैसे करोगे, आप इफेक्ट्स पे आए तो कुछ इस तरह ही खुल जाएगा। इसमें कई सारे इफेक्ट्स हैं, इनको आप ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ग्लो में थोड़ा सा ग्लो आ जाएगा आपके टेक्स्ट के अराउंड। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आपको दिखने लगेगा। इको में जाएंगे तो एक इको जो है, एक सॉर्ट ऑफ इको अपीयर हो जाएगी। इसको थोड़ा लाइट करूँगा तो आपको बेटर दिख पाएगी। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है थोड़ी थोड़ी इको इसके साथ टेक्स्ट की होने लग गई है। इसको ऑफसेट बढ़ाऊंगा तो आपको और दिखेगा, राइट। तो ये एक इफेक्ट आप लगा सकते हो। ड्रॉप भी एक इफेक्ट होता है, अगर आपको थोड़ा उतना ज़्यादा फ्लैशी फॉन्ट नहीं चाहिए, आउटलाइन कर सकते हो आप किसी और अच्छा कलर सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा आउटलाइन का कलर चाहिए। कॉन्ट्रास्ट के लिए आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आउटलाइन भी बन जाती है अगर आपको बनानी हो। उसके बाद बैकग्राउंड अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। ये तो आपने देखा होगा हमारे इंस्टाग्राम के स्टोरीज में भी कुछ इस तरह से फॉन्ट पे एडिट हो जाता है। फिर बाकी चीज़ें आई वुड रिकमेंड कि आप खुद से ट्राई करके देखो कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। ठीक है, आप चाहो तो कर्व डाल सकते हो थोड़ा सा, उसके कितना कर्व करना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। मुझे लगता है मैं इस पोस्टर के लिए जो आपके लिए बना रहा हूँ, आई विल गो विद दिस ऑप्शन जो कि है कामयाब। पहले हम इसको हटा देते हैं कर्व को। अच्छा, किसी चीज़ को हटाना है, अगर सिलेक्ट हो गया तो हटाने के लिए उसी को दोबारा क्लिक कर दो तो वो इफेक्ट हट जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ एडवांस भी आ गए, बट हम इस पोस्टर के लिए विल गो विद इको के साथ जाते हैं। ठीक है, इको करेंगे क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो लाइट इन कलर है, तो हम इको एक डार्क कलर की ले लेते हैं, सपोज ब्लैक कलर की। और थोड़ा सा ऑफसेट इसका ऐसे कर देते हैं कि थोड़ा सा, जैसे ए पहले सीधा खत्म हो जा रहा था, यहाँ पे अब ए के साथ थोड़ा सा एक बैकग्राउंड सा बन गया,
तो ये और ज़्यादा विजिबल हो गया, ठीक है, एक और ज़्यादा विजिबल हो गया। अब आप देखो ये हमारे पोस्टर पे जो नॉर्मली हमने लिखा था उससे अब कितना ज़्यादा बेटर और विजुअली अपीलिंग बन गया, राइट। सो आर यू विद मी ऑन दिस? अभी तक इतना समझ आ गया? यस कर दो एक बार, नहीं तो थम्स अप भेज दो। वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है। अब ये इस पे इस तरह से बन गया है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो है एलिमेंट्स। टेक्स्ट हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे एलिमेंट्स पे, तो इसी के ऊपर ऑप्शन था। अब इसमें जो भी जैसे सपोज क्योंकि ये सेल्फ इंट्रोडक्शन पोस्टर है और हमें हॉबीज और इंटरेस्ट बताने, ठीक है, तो मुझे लगता है मेरी हॉबीज में एक हॉबी है बुक रीडिंग, ठीक है। तो आई सर्च फॉर बुक्स और इसमें कई सारे ग्राफिक्स आ जाएंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हो कुछ ग्राफिक जो है उनके ऊपर ये बना हुआ है, क्राउन बना हुआ है। इसका मतलब है ये कैनवा प्रीमियम से ही एक्सेस किए जा सकते हैं। अब हम इन्हें और देखेंगे तो हमें ऐसे ग्राफिक भी मिल जाएंगे, सी ऑल पे जाएंगे, जिन पे ये नहीं बना हुआ, तो ये हम एक्सेस कर सकते हैं विदाउट हैविंग द प्रीमियम अकाउंट ऑल्सो, ठीक है। जैसे ये काफ़ी मेरे को अच्छा ग्राफिक लग रहा है, तो आई क्लिक ऑन दिस। अब ये मेरे पास यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको मैं जो है इसको मैं छोटा बड़ा करके आई कैन प्लेस इट एनीवेयर आई लाइक, आई जस्ट प्लेस इट हियर, टू शो दैट आई हैव इंटरेस्ट इन दिस और मेरी पर्सनैलिटी को ही रिफ्लेक्ट करता है, तो मैंने इसे यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो ये जो बटन है इसको होल्ड करूँगा तो मैं इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर पाऊँगा। मैंने सपोज इसको रोटेट कर लिया ऐसे, और इसको मैं चलिए लेफ्ट साइड में रख देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट डल गया। दोबारा एलिमेंट्स पे जाऊँगा और मुझे क्या पसंद है, और मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, म्यूज़िक सुनना, ठीक है, गाने सुनना, समथिंग आई लाइक। तो ये मेरी पर्सनैलिटी के साथ रेजोनेट करता है, तो यहाँ पे मैं देखूँगा और इसमें ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये वाले पे क्लिक करूँगा। अच्छा, अब ये एलिमेंट जो है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड डार्क है, तो डार्क में ब्लैक कलर का उतना अच्छा नहीं लगता है, तो वॉट आई विल डू इज यहाँ पर ऊपर एडिट का और ये कलर का ऑप्शन है, तो मैं कलर पे क्लिक करूँगा एंड सिंपली मैं इसका कलर जो है कोई और कलर सेलेक्ट कर, ठीक है। ये है, ये थोड़ा बेटर लगा, तो I will select this and I can move this around. So I'll just move it around like this and एक इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से कुछ एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट है। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसी 5-6 एलिमेंट्स चूज करने हैं जो आपको लगता है आपकी पर्सनैलिटी से रेजोनेट हो रहे हैं और आपको उन्हें लगाना है, ठीक है। तो पहला टास्क क्या हुआ कि एक पोस्टर को बनाना है, डिज़ाइन को लेना है। दूसरा क्या हुआ कि उसमें बैकग्राउंड कलर लगाना है, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो तो ये हेडिंग्स है जो आपको लिखनी है। तीसरा टास्क क्या हुआ कि आपको एक फॉन्ट चूज करके उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम लिख के वो करना है, ठीक है, उस पर फॉन्ट्स वगैरह लगाना है। फिर चौथा क्या रहा, एलिमेंट्स लगाने हैं ढूंढ के फॉर योर वट एवर हॉबीज और इंटरेस्ट यू हैव, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा मेन स्टेप, जो आज का टास्क का मेन कोर चीज़ है, जो नई चीज़ आप शायद सीखेंगे आज, वो है किस तरह से अपनी फ़ोटो को यूज़ करें विद बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप मैं चाहूँगा खुद से थोड़ा थोड़ा देखें और क्या ऑप्शन होते हैं, लेकिन आज हमारे पहले टास्क से कंसर्न जो ऑप्शन है वो है अपलोड का ऑप्शन। तो अपलोड पे आएंगे, ठीक है। अपलोड पे आप देख पा रहे हैं इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, फोल्डर्स, कुछ कुछ इस तरह से हमारे पास ऑप्शन है। आज हम क्योंकि पोस्टर बनाए हैं, इमेजेस पे आएंगे। इमेजेस पे अपलोड फाइल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप स्मार्टफोन पे तो वहाँ पे भी अपलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप इमेज पे जाएंगे और अपने डिवाइस से इमेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इस सेशन से पहले एक अपनी फ़ोटो चूज़ करके रख ली थी कि ये वाली फ़ोटो जो है आपको दिखाऊंगा करके, तो वो ये है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो ये अपने आप अपलोड हो जाएगी कैनवा के अंदर, ठीक है। कैनवा के अंदर अपलोड हो गई है अब ये। अब उस फोटो को मैं क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं चाहूँ तो इसे क्रॉप कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, अब और बड़ा कर सकता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तरह से हमारा जो पोस्टर था वो यहाँ पे एलिमेंट्स उसके कंप्लीट हो गए, राइट। हमने फ़ोटो भी लगा दी है, बट आप देख पा रहे हैं कि ये फ़ोटो बिल्कुल भी जो है पोस्टर में अलाइंड नहीं लग रही है, ये आउट ऑफ प्लेस लग रही है। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि वो फ़ोटो जिस सेटिंग में ली गई थी वो कुछ और सेटिंग है, वो पूरा उसमें बैकग्राउंड आ रहा है, पीछे एक ब्लैक बोर्ड जो वाइट बोर्ड है वो दिख रहा है, ठीक है, अगल बगल की सेटिंग आ रही है। आई डोंट वॉन्ट दिस, दिस इज़ अ वेरी
initial starting beginner level poster. To make this more visually appealing, to make this look better, we want to remove the background from this image. Now how do we do that? And this is the core thing which we will be learning in today's lecture. What we will do is we will go here to our browser. ठीक है, ब्राउजर दिख रहा है, सबको दिख रहा है? एक बार कंफर्म कर दो. ठीक है, ब्राउजर पे आएंगे, एक नया जो है स्लाइड खोलेंगे. ये बंद कर देता हूँ. ठीक है, एक नया टैब खोलेंगे ब्राउजर में और उस पर सर्च करेंगे फोटो रूम. फोटो रूम सर्च करेंगे. फोटो रूम इज एन ओपन सोर्स टूल विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें कोई सब्सक्रिप्शन की एज सच जरूरत नहीं पड़ती. एंड दिस इज द टूल वी यूज जब हमें बैकग्राउंड रिमूवल, इमेज एनहांसिंग या ऐसे कुछ फीचर यूज करने हैं जो शायद हम कैनवा प्रीमियम के बिना ना कर पाए. Hello. Am I audible and visible again? Yes. Perfect. Pardon me, थोड़ा सा ना इशू आ गया था नेटवर्क का. कहाँ तक हमने कर लिया था? कोई बता सर अभी सकता? आप ओपन करने वाले थे. अच्छा, फोटो रूम तक पहुंच गए थे ना. परफेक्ट. तो फोटो रूम पर हम आएंगे. आप सिंपली अपने ब्राउजर में सर्च कर सकते हैं और अगर स्मार्टफोन पे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं. फोटो रूम को खोलेंगे तो इसमें आपका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए इसके लिए. हो सकता है आपसे गूगल साइन इन के लिए रिक्वेस्ट करें, तो आप इस पर सिंपली आपका जो भी फ़ोन में गूगल अकाउंट लॉगिन है आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक साइन इन हो जाएगा. कोई और पासवर्ड क्रिएट करने की, अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी. ठीक है. जस्ट पार्डन में थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो ये स्लो चलता है. बट जब आप इसको खोल लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइन इन है तो शायद मुझे दोबारा शो ना हो, बट आपको बस सिंपली अपना गूगल अकाउंट साइन इन करना है. ठीक है, और उसके बाद आपको स्टार्ट क्रिएटिंग पर क्लिक करना है. ठीक है, स्टार्ट क्रिएटिंग पर क्लिक करेंगे तो वो एक नई विंडो खुल जाएगी. ठीक है, लेट्स जस्ट वेट फॉर इट टू ओपन. जस्ट अ सेकेंड. मीनवाइल हरजूत मीटिंग में है. अगर हरजूत सुन रहे तो प्लीज़ थम्स अप भेज दो एक बार. परफेक्ट. तो एक बार हरजोत मुझे ना यहाँ चैट बॉक्स में टेक्स्ट पे बता देना इन केस आई एम मिसिंग समथिंग दैट वी वांटेड टू डिस्कस एंड आई एम फॉरगेटिंग. ठीक है, वैसे मैं टैली कर रहा हूँ हमारे नोट्स के साथ, बट इन केस कुछ छूटता है मेरे माइंड से तो प्लीज़ मुझे रिमाइंड करवा देना. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है दोबारा? एक सेकेंड. ठीक ठीक, परफेक्ट. चलो, लेट मी शो यू हाउ टू यूज द फोटो रूम टू रिमूव योर बैकग्राउंड ऑफ द इमेज दैट यू वांट टू अपलोड. तो ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा फोटो रूम का. ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइन इन है मेरा गूगल अकाउंट, तो यहाँ पे मुझे दोबारा साइन इन नहीं मांगा इसने. लेकिन आपको हो सकता है पहली बार इसको साइन इन करना पड़े, तो आप वो कर लीजिएगा. कुछ इस तरह से आपका ये इंटरफेस खुलेगा. ठीक है, फ़ोन में भी कुछ सिमिलर इंटरफेस ही होगा. आप सिंपली यहाँ पर देख पा रहे हो बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन, राइट. आप इस पर क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड रिमूवर पर आपको ले जाएगा. ठीक है, ठीक है. तो क्योंकि मैंने बैकग्राउंड रिमूवर दबाया तो अब उसने मेरे को एक अपलोड वाली विंडो दे दी जहाँ पे आई कैन अपलोड व्हाट इमेज आई वांट टू रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ. तो यहाँ पे जैसे हमारी ये इमेज थी, हमने इसे सिलेक्ट करेंगे तो वो इमेज ही खुल जाएगी विद इट्स बैकग्राउंड रिमूव्ड. ठीक है, अब ये लोड हो रहा है. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो वो इमेज लंबी थी तो इसने अपने आप इमेज को जो है बैकग्राउंड रिमूव करके छोटा कर दिया. और आप देख सकते हो कितना एक्यूरेट है ये. इसने ना सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करा, इसने जो बीच में स्पेसेस थी जैसे मेरे आर्म के नीचे इधर या मेरे इस साइड आर्म के या इधर जो यहाँ पे कोई व्यक्ति भी दिख रहा था थोड़ा सा, तो उसने सब रिमूव कर दिया आसपास से. अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसमें डाउनलोड पे जाऊँगा. ठीक है, पीएनजी में अपने आप
इस फॉर्मेट में डाउनलोड का मेरे को ऑप्शन दिख रहा है, वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, विद इट्स बैकग्राउंड रिमूव। अब ये मैं चाहूँ तो किसी लोगो का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ तो बाकी किसी चीज़ का भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। मैं सिंपली इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। नाउ दिस सेव्ड फाइल इज द वन इन विच आई हैव रिमूव्ड द बैकग्राउंड। तो मॉम थोड़ा, तो मैं कैनवा पे जाऊँगा। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस इमेज विद द बैकग्राउंड, I'll just remove or delete this image, delete कर दूँ। I'll upload the second image in which I've removed the background. So I'll go to upload files. ठीक है, यहाँ पर वही इंटरफेस आ गया। अब मैं यहाँ से जो रिमूव बैकग्राउंड है उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा अभी, ठीक है। एक तो होता है अगर आप अपलोड करके ये करो, लेकिन अगर आप लैपटॉप पर हो तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आप अपने जहाँ पर भी आपकी फाइल है, जैसे मेरी जो फाइल है वो यहाँ पर है, ठीक है, डे 1 रिमूव विद द बैकग्राउंड रिमूव, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ हमारे कैनवा के अंदर। ये हमारा कैनवा है, राइट। तो आई विल सिंपली ड्रैग दिस फाइल टू द कैनवा एंड आई विल ड्रॉप इट हियर, तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ कूल एंड अ क्विक वर्जन ऑफ पुटिंग योर फाइल्स इन कैनवा। तो आप देख पा रहे हो ये एक्स्ट्रा स्पेस को मैं कम कर देता हूँ। नाउ वो सुंदर हो गया। नाउ दिस इज लुकिंग मच बेटर, राइट। अब आप बताओ क्या बेटर लग रहा था, पहले बेटर लग रहा था, अब बेटर लग रहा है? आई थिंक अब बेटर लग रहा है। इसको अगर मैं इन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ऐसे ही मैं जो है सिलेक्ट करके कॉपी भी कर सकता हूँ और इसको इस बैकग्राउंड में भी डाल सकता हूँ, ठीक है। इस बैकग्राउंड में थोड़ा इसके लिए कलर्स हमें अलग करने पड़ेंगे, ठीक है। ये इसका कलर सपोज कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पोस्टर्स के डिज़ाइन बन गए। तो दिस इज़ द, अब 80% आपका काम हो गया। 80% आपका काम जो है वो इसमें ही हो गया है। अब इन्हीं में आपको थोड़ा और बढ़ाना है, आपको एलिमेंट्स थोड़े बढ़ाने हैं, आपको अपनी फ़ोटो के साथ अगर आप चाहो तो। अच्छा फ़ोटो, अब ये थोड़ी सी डार्क फ़ोटो है और डार्क बैकग्राउंड में डार्क फ़ोटो थोड़ी सी मिल जा रही है, तो इसको बेटर जो है दिखाने के लिए आई कैन चूज़ द फ़ोटो एंड आई कैन एडिट द फ़ोटो। मैं एडिट में जाऊँगा और एडिट में आई हैव सो मेनी ऑप्शंस टू एडिट। मैं इसमें थोड़े से पोर्शन को डार्क कर सकता हूँ, डल कर सकता हूँ, ठीक है, उसमें स्टाइल को मैच कर सकता हूँ। व्हाट आई पर्सनली यूज इज, यहाँ पे एक एडिट में ऑप्शन आता है, एडिट में आऊँगा, हाँ, तो एडिट में ऑप्शन आता है फिल्टर्स का। सो दीज आर प्री मेड टेम्पलेट्स विच आई कैन चूज फ्रॉम कि मेरे को किस तरह से एडिटिंग चाहिए अपने फोटोग्राफ। जैसे आप देख सकते हो मैंने वार्म टोन करी और उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, तो उसके कलर्स थोड़े और पॉप आउट कर गए, एक डल और कूल बैकग्राउंड में जो एक थोड़ा कोल्ड साइड इमेज को ले जा रहा था, ठीक है। आपने ये एडिटिंग में टर्म सुनी होंगी, वार्म, कोल्ड, तो ये कलर्स के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं कि किस तरह से आपकी जो लाइटिंग है या जितनी कलरफुल इमेज पॉप आउट कर रहे हैं कलर, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, इंटेंसिटी को, ठीक है। तो उस तरह से जब आप एक इसमें होता है कोल्ड वाला, जैसे कूल वाली जो फैमिली होती है पिक्चर्स की, तो वो क्या करते हैं आपकी डी कलराइज कर देते हैं आपकी इमेज को, कि आपकी इमेज से कलर कम कर देते हैं। और वहीं आप वार्म वाले फैमिली में जाते हो तो और कलर भर देते हैं और ज़्यादा कलराइज कर देते हैं आपकी फोटोग्राफ। तो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा सा डी कलराइज फोटोग्राफ है, तो हम इसमें वार्म वाली टोन्स में जाके उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा बेटर लग रहा था, बाली का 60%। अब थोड़ा सा पहले वाली इमेज से थोड़ा और बेटर हो। अब आप जैसे भी चाहें अपना वो कर सकते हैं। आज हमारा एम एक और सब नोट पर आपसे बात करनी थी जो कि थी कलर थ्योरी, ठीक है। बट वो मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊं उससे बेटर ये रहेगा कि आप उसे करके समझिए कि व्हाट कलर्स गो विद विच कलर्स। आपने थोड़ा बहुत तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा, राइट, कि जैसे रेड और येलो जब मिलते हैं तो वो ऑरेंज शेड देते हैं, ठीक है। हमारे प्राइमरी कलर्स जो हैं वो मिलकर जो है नए शेड देते हैं, जैसे येलो और ब्लू जो है वो मिलके ग्रीन देते हैं,
है, और वो जितने रेशो में मिल रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि कितना हल्का या भारा वो शेड होगा। तो कुछ उस तरह से जब हम पोस्टर्स भी बना रहे हैं तो उसमें भी कलर थ्योरी का बहुत यूज होता है कि किस तरह से हम पॉप आउट करवा रहे हैं। जैसे हमने करा डार्क बैकग्राउंड लिया, उसमें हमने जो टेक्स्ट है उसे लाइट कलर का रखा ताकि वो पॉप आउट करे। फिर उसमें हमने जो इको का इफेक्ट भी लगाया, जो इफेक्ट में इको लगाया उसकी जो शेडो बनाई इको की, उसका कलर हमने डार्क रखा ताकि वो और थोड़ा एलिवेट हो। फिर वो ये सारे जो कलर्स ये कहीं ना कहीं हमारी इमेज में थे, इसीलिए हमने चूज करे थे। ठीक है, तो आपको अपनी देखनी कौन सी इमेज आप लगा रहे हो। एक मैं और मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ। अभी ये इमेज ओके ओके, मैं चाह रहा हूँ कि ये इमेज पे एक हल्का सा सिलुएट लग जाए। सिलुएट मतलब एक हल्का सा बैकग्राउंड लग जाए वाइट कलर का, एक आउटलाइन लग जाए। तो उसको मैं चाहूँ तो कैनवा प्रीमियम में भी वो हो जाता है, पर मेरे पास कैनवा प्रीमियम नहीं। तो मैं उसके बिना कैसे कर सकता हूँ, एक ट्रिक दिखाता हूँ आपको। मैं इमेज लूंगा अपनी, मैं इमेज को डुप्लीकेट करूंगा। ठीक है, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन कौन सा था, ये वाला। ठीक है, मैं डुप्लीकेट करूंगा। अब मेरे पास दो फोटो आ गई, दो फोटो आ गई। मैं एक फोटो को आगे लाकर हल्का सा छोटा कर दूँ। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये छोटी हो गई हल्की सी, इसको मैं साइड में ले जाता हूँ। ये जो बड़ी और पीछे थी, इसको मैं इस तरह से अगर एडिट कर दूँ कि पूरी इमेज जो है वाइट हो जाए, और उसके ऊपर अपनी असली जो डुप्लीकेट इमेज है वो ला के रखूँ, तो एक वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। राइट, तो उसको कैसे मैं करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डुओ टोन। ठीक है, डुओ टोन का फिल्टर्स में डुओ टोन, डुओ टोन में आके मैं जिस भी तरह से चाह रहा हूँ, जैसे मैं चाह रहा हूँ वाइट बैकग्राउंड है, तो आई जस्ट चूज बोथ द हाईलाइट्स एंड द शेडोज टू बी ऑफ वाइट कलर। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सिर्फ अगर ये करूँगा तो कुछ इस तरह से ये इमेज का कलर ऐसा होगा। ठीक है, और इसको अगर मैं इसको भी वाइट कर दूँ तो एक बैकग्राउंड वाइट कलर का ऐसा शार्प सा आउटलाइन वाइट कलर की बनेगी। और इसके ऊपर जब मैं अपनी फ़ोटो को रखूँगा और एक्सपैंड करूँगा, ठीक है, और कुछ इस तरह से करूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसको कवर ना करे, ठीक है, पर उसके लगभग पास में रहे, और उसको जब मैं ऐसे कर लूँगा, अब एक हल्का सा सिल्हुएट जो है, एक हल्की सी शेडो, एक हल्का सा बैकग्राउंड आ गया है फोटोग्राफ का। इसको मैं कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने एडजस्टमेंट कैसे करी, इसको मैंने सिलेक्ट करा ऊपर वाली फोटो को, और नॉर्मल एरो कीज जो हमारी है, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट, ऊपर ऊपर, राइट राइट, ये सब कर लिया मैंने। ठीक है, जितनी बार आप करोगे उतना हल्का सा मूवमेंट होता है, उतने पिक्सल्स का मूवमेंट होता है। तो ये लैपटॉप पे आप कर सकते हो। फोन में अगर आपको पिच परफेक्ट मूवमेंट ऐसे करना है तो आप सिंपली पोजिशन पे जाओ। पोजीशन में एक ऑप्शन आएगा आपके फ़ोन में, आते हैं नज, नज करके, NUDGE। तो उसको आप राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जैसे भी चाहो हल्का हल्का मूव कर सकते हैं। अब क्योंकि यह नीचे से ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसे हल्का नीचे करके, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन। अब वो थोड़ी और एलिवेट होगी इमेज। तो इस तरह से हमने आज क्या कुछ सीख लिया कि टेक्स्ट कैसे लगाने हैं, एलिमेंट्स कैसे लगाने हैं, उनको एडिट कैसे करने हैं, डिज़ाइन में पीछे कलर कैसे लगाने हैं, और इमेज कैसे डालना है। अब दो चीज़ें हमारी बची। एक है, इसको अब एक, अभी तक ये क्या है, काफ़ी प्लेन लग रहा है पोस्टर, इसमें काफ़ी प्लेन वाइब आ रही है। हम चाह रहे हैं कि ये थोड़ा और प्लेफुल, जैसे आप देख पा रहे हो GYCF, इसमें एक सर्टन फाउंडेशनल कुछ है पीछे। हम इसे देखते हैं, इसके पीछे के जो एलिमेंट्स हैं, इसको जब हम देख रहे हैं, कुछ खुरदुरा सा एक पेपर का टेक्सचर है। इसको जब मैं कॉपी करके हमारे पोस्टर में लाता हूँ सपोज, तो अब आप देख पा रहे हो कुछ कुछ ऐसा टेक्सचर लगाने से थोड़ी और इमेज में थोड़ा मज़ा आ रहा है। राइट, तो आप यहाँ से कॉपी करके इसे लगा सकते हो। इसकी ट्रांसपेरेंसी आप चाहो तो थोड़ा कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, अभी ये इमेज के ऊपर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये इमेज के पीछे है, तो आई सेलेक्ट दिस। पोजिशन पे आके एक ऑप्शन होती है लेयर्स का। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो बैक कर सकते हैं मैनुअली, पर बहुत सारी लेयर्स होते हैं, जैसे एक टेक्स्ट की लेयर है, दो इमेज की लेयर्स है ना, काफ़ी कुछ है। तो मैं चाह रहा हूँ मेरी जो ये टेक्सचर की लेयर है ये सबसे नीचे हो। ठीक है, मैंने सबसे नीचे पकड़ के कर दी। अब मेरी इमेज साफ हो गई, ये सबके नीचे चली गई। तो आप देख पा रहे हो कि इसके बिना और इसके साथ थोड़ा सा इमेज में, इमेज की टेस्ट में फर्क आ गया। राइट, तो डू यू लाइक इट विद दिस और विदाउट दिस? ठीक है, कोई प्लीज बताए, should we keep this or we should we remove this? अच्छा, am I audible guys? Yes, We can keep this. all right. So समीक्षा ने कहा है we should keep this, so let's keep this. ठीक है,
अब यही चीज आपको क्या करनी है, सपोज आपको ऐसा ही टेक्सचर चाहिए तो वो तो आप टेम्पलेट से ले ही सकते हो, राइट। अगर आपको कोई नया टेक्सचर चाहिए तो आप एलिमेंट्स में जाओ, ठीक है, उस पर आप लिखो टेक्सचर, ठीक है, और बहुत सारे टेक्सचर्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। कुछ कुछ आपको प्रीमियम वाले दिखेंगे, कुछ आपको फ्री भी दिख जाएंगे। उसमें से जो भी टेक्सचर आपको लग रहा है, जैसे कि ये भी हमने कई पोस्टर्स में हमारे यूज़ करा था, ठीक है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें कलर भी इसका एडिट कर सकते हो, ठीक है, जैसे एडिट करा लाइट कलर का, और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी बिल्कुल, और इसको पीछे कर दिया। इससे आपकी जो इमेज है वो और पॉप हो जाएगी। जैसे इसको यहाँ कर दिया तो ये भी एक टेक्सचर डल गया। मतलब कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट। एक स्पॉटलाइट सी दिख रही है, लेकिन उससे ओवरऑल हमारी पिक्चर की, पोस्टर की क्वालिटी जो है वो एलिवेट हो जाएगी, राइट। सो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो कि आप जो पोस्टर बना रहे हो उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट, जस्ट इट शुड बी पर्सनल टू यू। आपको जो मज़ा आ रहा है, जो मन कर रहा है बनाने का, वो होना चाहिए। और दूसरी चीज़, मेक श्योर यू डू नॉट ओवर डू इट, वट एवर दैट यू आर डूइंग, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप ओवर डू कर दोगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चले जाओ, तो वो भी देखने में ज़्यादा प्लीजिंग नहीं रहेगी। इसीलिए आप देख पा रहे हो हमने बहुत कुछ नहीं डाला है, बेसिक चीज़ें डाली, और उससे ये पोस्टर काफ़ी एलिवेट हो गया, राइट। इसको अगर मैं थोड़ा नीचे कर दूँ, या इसको यहाँ डाल दूँ, और इसको यहाँ डाल दूँ, थोड़ा सा मतलब एक पर्सनालिटी वाला टच आ रहा है, राइट। क्या चीज़ें मुझे पसंद है, मेरे हॉबीज़ वगैरह का, राइट। चलो, नाउ दैट वी हैव डन दिस, द लास्ट थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू डू इज, ठीक है, इज एक तो अपना वो लिख देना, जैसे अब मैं अपना वो लिखूँ कि मैं हूँ मंडी डबवाली से, ठीक है, और इस वाले को मैं थोड़ा फॉन्ट छोटा करके ऐसे कर। तो आप सबने अपना नाम लिखना है, ठीक है, आप कहाँ से हो ये लिखना है, ठीक है। आप चाहो तो अपने स्कूल का नाम, अपने कॉलेज का नाम, वो सब भी डाल सकते हो, ठीक है। और फिर अपनी हॉबीज़, कुछ भी अगर हॉबीज़ हैं आपकी, जैसे आई लव रीडिंग, तो दैट वुड मेक मी अ रीडर, ठीक है। तो आई पुट दिस, आई लाइक रीडिंग, देन I like listening to music, so that makes me a music enthusiast, right? इसको भी मैंने जो है थोड़ा इधर को रोटेट करके, तो कुछ इस तरह से छोटे छोटे टैग्स जो आपके हैं उनको आप जो है पूरे पोस्टर में कहीं ना कहीं डाल सकते हो। आई वुड इनकरेज यू टू डू दैट, ठीक है। फिर एक चीज़ जो आपको करनी है, अगर आपको कुछ मोटो कुछ डालना है, जैसे एक मोटो जो मुझे बहुत पसंद है, इस मेंस एजिटेट मॉल, ठीक है। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि माइंड कैन मूव माउंटेन्स, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को जो है करना चाहो तो आप कर सकते हो, किसी भी चीज़ को करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कार्पे डियम या कुछ भी अगर आपको लिखना है, तो एक छोटा सा मोटो भी आप चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। इसको सपोज मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ इस तरह से। अगेन इट्स योर कॉल इफ़ यू वांट टू पुट इट और नॉट, बट आज के टास्क की आपको आउटलाइन समझ आ गई होगी कि आपको क्या कुछ करना ही करना है। Once you have done this, now the final stage is to make it in line with the main theme, which is GYCF. तो मुझे since ये GYCF का प्रोजेक्ट है, तो I'll just copy some elements from over here, ठीक है, which reflect that it's a GYCF thing, ठीक है। यहाँ से ऊपर वाले कॉपी करे मैंने, और यहाँ से इस पे मैंने पेस्ट कर दिए, और कुछ इस तरह से अलाइन कर दी, मेरे पोस्टर भी डिस्टर्ब ना हो, राइट। और उसमें भी देख लो, अब आप देख पा रहे हो किस तरह से हमने एक पोस्टर बना लिए, ठीक है, जिसमें इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। चलो, ठीक है। तो आपके सामने अब एक पोस्टर तैयार हो गया, इसको फुल स्क्रीन में प्रीव्यू करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पोस्टर रेडी, ठीक है, ये हमारा पोस्टर रेडी हो गया। अब आप देख पा रहे हो ये हमने बिल्कुल बेसिक सिंपल डिज़ाइन से शुरू करा था, और अब इसमें कितने एलिमेंट्स हमने यूज़ करके डाला, ठीक है। अब नाउ दैट वी हैव लर्नड हाउ टू मेक दिस, once we have made the poster and we are
रेडी विद आवर पोस्टर। ठीक है, अब इस डिज़ाइन में मल्टीपल स्लाइड्स, तो हम इस वाली को ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये हमारी पेज 1 पे जो स्लाइड है, इसको हमें सेव करना है। तो सेव कैसे करेंगे, यहाँ ऊपर ऑप्शन होता है शेयर का, शेयर में जाएंगे। ठीक है, अब शेयर जैसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको लिंक भेजना है, तो अभी ये ओपन एक्सेस नहीं है, तो मैं इसको पहले चेंज करूँगा एनीवन विद द लिंक। ठीक है, फिर इसमें ऑप्शन होगा कैन एडिट वाला, कैन एडिट पे जाऊँगा और फिर ये कॉपी करके लिंक को मैं जैसे भी मैं भेजना चाहूँ व्हाट्सएप पे या जैसे वो शेयर कर दूँ। दूसरी चीज़, अगर मुझे इसका लिंक नहीं भेजना, मुझे फ़ोटो डाउनलोड करके भेजना, तो शेयर पे मैं जाऊँगा, अगेन यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा। डाउनलोड पे जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे ये मेरे से पहले पूछेगा फाइल टाइप क्या है, तो मुझे वीडियो तो नहीं चाहिए, मुझे तो पोस्टर चाहिए, जो फोटो चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे पीडीएफ है, आप चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड करके भेज सकते हो इसका, बट आई वुड रिकमेंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर शेयरिंग एन इमेज इज पीएनजी। पीएनजी फॉर्मेट जो होता है उसमें हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ फोटो जो है डाउनलोड होकर आती है, तो पीएनजी पर जाऊँगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट पेजेस का ऑप्शन होगा। ठीक है, कंप्रेस वगैरह तो हमें करनी नहीं, क्वालिटी वैसे भी ये प्रीमियम फीचर्स है तो इन्हें इग्नोर कर देंगे। पीएनजी सिलेक्ट करा, फिर सिलेक्ट पेजेस का ऑप्शन है। यहाँ पे क्योंकि हमने सिर्फ पहला पेज डाउनलोड करना है, तो हम करंट पेज पे जाएंगे। ठीक है, या हम चाहे तो यहाँ पे बस लिख सकते हैं 1। ठीक है, 1 का मतलब जो है यहाँ पे पेज 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ से इसको डाउनलोड दबा देंगे। ठीक है, तो पीएनजी और फर्स्ट पेज इसको डाउनलोड दबाएंगे, तो ये जो है डाउनलोडिंग यहाँ पर हमें शो हो रही है। ये जब डाउनलोड कंप्लीट होगा तो द कंप्यूटर विल आस्क अस, द कैनवा विल आस्क अस, इसे किस नाम से आप सेव करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये सबको ध्यान रखना है कि सेव किस नाम से करना है। सेव हमें करना है अपने नाम से, जैसे मेरा नाम है आदित्य, फिर अंडरस्कोर day1 GYCF। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर होगा कि ये मेरा टास्क है day1 का GYCF का। ठीक है, इसको मैं अपने सपोज डेस्कटॉप पे, यहाँ पे ये पीएनजी फाइल है, इसको मैं सेव कर दूँगा। ठीक है, तो अब जो भी ये फाइल सेव हो गई, ठीक है, अब ये यहाँ पे फाइल सेव हो गई, इसको मैं खोल के देखूँगा, तो दिस इज द पोस्टर दैट वी हैव मेड। दिस इज द पोस्टर वी हैव। तो हमारा पहले दिन का टास्क जो सबमिशन का वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो फाइल आपके पास आ गई है ये आपके डिवाइस में, आप इसको बस क्लासरूम पे जाके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, गूगल क्लासरूम पे, और आपका आज का टास्क जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। तो आपको समझ आ गया कि किस तरह से कैनवा का डिजाइन बनेगा, पोस्टर बनेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर है तो एक थम्स अप भेज दो। परफेक्ट। Also now we are opening the floor to doubts and questions. ठीक है, let me just